Greetings to all in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शुभकामनाएं। We are privileged to come back to this evening meeting. और इस संध्या के समय में वापस एक बार हम मीटिंग में आ चुके हैं, ये हमारा सौभाग्य है। We thank God for keeping all of us under His care and brought us back to His presence. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने उसके दया के अनुसार उसके चरणों के पास हमें रखा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। And I believe that each one of us really is enjoying the presence of God and His word. और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो वो प्रभु ने बातें की हैं वो सभी को आशीषित हुई है। We have come to chapter 4 of the book of Daniel. ब्रदर एमजे बाबू, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। Okay. थोड़ा जोर से बोलेंगे तो अच्छा। We have come to chapter 4 of book of Daniel. दानियल की किताब के चौथे अध्याय में हम आ चुके हैं। Is it clear now? हाँ ठीक है ब्रदर, ठीक है। Okay, thank you. The Lord has been enlightening us through His word. और प्रभु अपने वचन के द्वारा इन दिनों में हमें आशीष दे रहा है। In chapter 4, we have another dream. चौथे अध्याय में जब हम आते हैं तो दूसरा एक स्वप्न हम देखते हैं। And this is again a dream of Nebuchadnezzar. और वापिस से जो सपना है ये नबूखदनेस्सर का है। This dream reveals about God's intervention in human affairs. और ये जो सपना है प्रभु जो दुनिया में करने वाला है उसके बारे में बताता है। And this chapter was written by none other than Nebuchadnezzar himself. ब्रदर सुनाई नहीं दे रहा है ब्रदर। The chapter was written by Nebuchadnezzar himself. ब्रदर जरा जोर से बोलेंगे। हेलो। Yeah. क्या प्रॉब्लम सभी के साथ ही है? Everybody is able to listen to my voice, or only Vinod is listening less? Your voice is very clear, uncle. Very clear. Raise your volume, Vinod. Hello brother. Yes. Vinod, do you hear me now? Yes brother. Yes brother. Yes. Is it clear? Now it's clear. Okay. This chapter was written by Nebuchadnezzar himself. और ये जो अध्याय है खुद नबूखदनेस्सर के बारे में लिखा हुआ है। In first 3 verses, he mentioned what has happened to him. और पहले 3 वचनों में उसको क्या हो गया उसके साथ उसके बारे में लिखा है। And he declares in these first 3 verses that the Most High God has dominion even in the human affairs. और इन 3 वचनों में नबूखदनेस्सर ये बताता है कि जो सबसे ऊंचा विराजमान परमेश्वर है वो पृथ्वी के ऊपर भी उसका साम्राज्य है। He wanted to share what God has taught him. Vinod? Nebuchadnezzar wanted to share
what God has taught him. हाँ हेलो Yes. हाँ yes Shall I repeat? yes brother please. Nebuchadnezzar wanted to tell to the world of that time what God had taught him. परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को क्या सिखाया, ये नबूकदनेस्सर को उन दिनों के लोगों को बताना है. In verse 1 he says, this is a declaration or a sharing of my experience with all the nations and languages. और पहले वचन में वो बता रहा है कि पूरे दुनिया के लोगों को जो प्रभु ने मुझे बताना है वो मैं बता रहा हूँ. We need to understand one thing. When he says, unto all the people, nations, and languages that dwell in all the earth, means the people of that time under his kingdom. और जो पहले वचन में लिखा है कि सारे राष्ट्र का जो समुदाय सब लोग है, ये इसका मतलब ये है कि उस जमाने में उसके साम्राज्य के समय में जो सारे लोग थे उनको उसको बताना है. We should not apply its a literal meaning to the present world. और अभी के जमाने के लोगों के लिए ये बातें नहीं है. But in other words, it does apply spiritually. और दूसरे शब्द में बोलेंगे तो जैसा वचन में लिखा है वैसे के वैसा लेना चाहिए. If you have experienced the Lord, it is very clear that we should share with everyone. Yes, brother, please pardon. If we have experienced the Lord's grace, if we have experienced the Lord's grace, we should share with everyone. अगर हमने परमेश्वर के रस्तों का अनुभव लिया है तो वो सारे चीजों के बारे में हमें परमेश्वर को बताना, हमें लोगों को बताना चाहिए. This is our responsibility. और ये हमारी जिम्मेदारी है. And during those days, whatever Nebuchadnezzar had experienced, now he shares with the people. और उन दिनों में नबूकदनेस्सर ने जो सारी चीजों का अनुभव लिया वो अभी वो उस जमाने के लोगों से वो बता रहा है. He says in verse 2, I thought it good to show the signs and wonders that the high God hath wrought toward me. और दूसरे वचन में वो कहता है कि जो चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने दिखाए हैं वो मुझे आपको बताना है. And I thought it good to show to all. और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं. This is very important thing for a Christian life. और ये एक मसीही जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है. And we need to share our experience with the Lord with others. और परमेश्वर के साथ जो हमारा अनुभव रहता है वो हम दूसरों के साथ भी बांटे. And it's a good thing. और ये एक अच्छी बात है. Whatever is taught to you and me, and we need to tell to others. और आपको और मुझको परमेश्वर ने क्या सिखाया है हम दूसरों को बताना जरूरी है. What David says in भजन संहिता उसका 66वां अध्याय में दाऊद क्या we will कहता है. read verse 16. 66 का 16वां वचन हम पढ़ेंगे. Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what he hath done for my soul. तो सब लोग परमेश्वर का बात सुनते हैं भय मानने वाले मेरे पास आ जाओ ताकि परमेश्वर ने जो सारी चीजें की है मैं आपको बताऊं. As Nebuchadnezzar had thought it good to share what he had experienced with the Lord, so do we. नबूकदनेस्सर को ये अच्छा लगा कि परमेश्वर के साथ का जो उसका अनुभव है वो आप लोगों के साथ बांटे और उसने वैसा किया.
David says, I will declare what he hath done for my soul. और दाऊद ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने मेरे आत्मा के साथ जो किया है वो चीज मैं बताऊंगा। This is the testimony. ये एक गवाही है। What hath he done to your soul and my soul? परमेश्वर ने आपके और मेरे आत्मा के साथ क्या किया है? He has redeemed our souls from the destruction. उसने नाश से हमारे आत्मा को बचा लिया है And he has revived us. और उसने हमें पुनर्जीवन दिया है। And therefore we praise him and share this testimony with others. करते हैं, हम उसको आराधना करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। Now, did you notice one thing? He says in verse 2, I thought it good to show the signs and wonders. और दूसरे वचन में ऐसा लिखा है कि मुझे यह अच्छा ऐसा लगा कि जो चिन्ह और चमत्कार है मैं आपको बताऊं। Let me read the complete verse. The signs and wonders that the high God hath wrought toward me. और जो चिन्ह और चमत्कार जो परमेश्वर ने मुझे दिखाए हैं, It's not done by man. ये जो चीजें हैं मनुष्य के द्वारा नहीं है, And these are done by God himself. और परमेश्वर के द्वारा ही ये सारी चीजें हुई है। No man can show any sign and wonder in order to deceive mankind. मनुष्य को फंसाने के लिए कोई भी मनुष्य जाति का आदमी कोई चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकता। There are many who are trying to show signs and wonders. दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिन्ह और चमत्कार करते हैं। This is just to deceive the people. लोगों को भरमाने के लिए ही ये सारी चीजें हैं। But signs and wonders are done by God himself. लेकिन जो चिन्ह और चमत्कार होते हैं वो परमेश्वर के द्वारा ही होते हैं। Why would he do that in the olden days? पुराने जमाने में परमेश्वर इन चिन्ह चमत्कार को क्यों किया करते थे? In order to prove what he wanted to say. और जो कुछ उसने कहा है वो सारी चीजों को साबित करने के लिए वो सब करते थे। Let me define what the sign is and what the wonder is. और अभी चिन्ह और चमत्कार क्या है ये मुझे आपको बताने दीजिए। Sign means it's a natural phenomena and is an evidence of God's intervention. और ये जो चिन्ह है ये नैसर्गिक एक बात है और परमेश्वर का मनुष्यों के बीच में एक स्वभाव बताने का एक तरीका है। So for instance, after the flood, Noah came out of the ark with his family. एक बात को बताता हूँ कि जब ये नोहा के जमाने में महापूर आया उसके बाद नोहा कुटुंब के साथ बाहर आया। And God said, I will put a sign in the sky. और परमेश्वर ने कहा कि मैं आकाश में एक चिन्ह को रखूंगा। That is a sign which is visible, but it is the intervention of God. और जो एक चिन्ह है जो दिखाई भी देगा और परमेश्वर का मनुष्य के बीच में जो बात है उसको दिखाएगा। And what is the wonder? और ये आश्चर्य कर्म क्या है? Wonder is a supernatural manifestation of divine intervention. और जो चमत्कार है वो जो दैवी परमेश्वर जो दैवी है उसका मनुष्य के बीच में काम करना है। When we come to Genesis chapter 15, जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 15वां अध्याय में आते हैं, there was a talk between God and Abraham. और वहां पे परमेश्वर और अब्राहम के बीच की एक बात है। Abraham brought the offering and divided it into parts and kept it on the rock. और अब्राहम ने एक अर्पण को लाया और दो भागों में बांट दिया और एक पत्थर के ऊपर रख दिया। And God supernaturally consumed that offering.
और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उस अर्पण को ग्रहण कर लिया That is the wonder. और ये एक अद्भुत है। So that we see happening during the early days of ministry of the apostles. और प्रेरितों के समय में भी ये शुरुआत के दिनों में ये अद्भुतें होती थी। Why did he do that? क्या अभी हम कर सकते हैं क्या? And no. Why did God do signs and wonders during the apostles' days? प्रेरितों के काम में परमेश्वर ने ये अद्भुतें और चिन्ह को क्यों किया? Come to Hebrews chapter 2. इब्रानियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में आइए, Verse 4. उसका चौथा वचन। God इब्रानियों also bearing them witness both with signs and wonders and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost according to his own will. और परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा मनुष्यों के बीच में ये गवाही दी है। He has confirmed the gospel which apostles have began to preach. और प्रेरितों ने जो सुसमाचार प्रचार करने को शुरुआत की थी उसकी निश्चितता परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा दी है। So something has happened in the life of Nebuchadnezzar. और उसको ये जीवन में हो चुका था। He had seen a sign of God और उसने वो चिन्ह देखा था and the wonder of God, और परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखा था, and which he wanted to show to all the people under his kingdom. और वही वो चिन्ह अद्भुत है जो सारे लोगों को उसको बताने की इच्छा थी। The very interesting part is it begins with praising God, this chapter, and closes also with the praising God. एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अध्याय का शुरुआत प्रशंसा से होती है और उसका अंतिम भी प्रशंसा से ही होता है। That's a lovely thing, isn't it? ये एक बहुत प्यारी बात है, नहीं क्या? Praising God all the time. हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना। So many things will happen in our life. हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होंगी। We continue to praise God. हमें हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना। When we wake up in the morning, we praise God. जब हम सुबह उठते हैं तो परमेश्वर की महिमा करना है। And when we go to bed in the night, we praise God. जब हम रात को सोने जाते हैं तो परमेश्वर की स्तुति करना है। Because he has put a word of praise in our mouth. क्योंकि परमेश्वर ने स्तुति का शब्द हमारे मुखों में डाल दिया है। Okay, what this chapter is all about? ये जो अध्याय है इसमें क्या लिखा हुआ है? In this chapter, Nebuchadnezzar sees a vision. ये अध्याय में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर ने एक दृष्टांत को देखा। In that vision, he saw a huge tree. और उस दृष्टांत में उसने एक बड़ा वृक्ष को देखा। Under the tree, many people and many animals, many birds came and took shelter. और बहुत सारे जो प्राणी हैं और पंछी हैं उस झाड़ के ओर आके रहने लगे। We read that in verse 11, the tree grew and was strong. और हम 11वां वचन में हम देखते हैं कि वो झाड़ जो है वृक्ष है बहुत बड़ा हो गया। Now all kinds of people came under its shelter. और बहुत सारे प्रकार के लोग उसके आश्रय के लिए आ गए। And when he woke up, he was disturbed. और जब ये राजा अपनी नींद से जाग उठा तो वो बेचैन हो गया। When he saw the vision, he was troubled. Verse 5 says that. वचन 5 में हम देखते हैं कि जब उसने उस दृष्टांत को देखा तो वो बेचैन हो गया। The visions of my head troubled me. और ये जो दृष्टांत देखा है उसका क्या मतलब है उसको समझ में नहीं आया। And he has invited all the magicians of Babylon to interpret the dream. और उसने वापस एक बार बाबिलोन के सारे
सपनों का अर्थ बताने वाले लोगों को उसका मतलब बताने के लिए बुलाया। And verse 7, और 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, and they could not interpret. उन सारे लोगों को इसका मतलब नहीं समझ में आया। They did not make known unto me the interpretation thereof, Nebuchadnezzar said. और वचन और वो सारे लोग उस सपने का अर्थ बता नहीं सके। And in verse 8, Daniel was summoned. और फिर आगे हम देखते हैं कि दानियल को बुलावा भेजा गया। Now, in this verses, we read that Nebuchadnezzar addressing Daniel with his Chaldean name. और यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल उसका जो काल्दियन नाम है उससे यहाँ पे हमें परिचित है। Verse 9 says, "O Belteshazzar." और यहाँ पे लिखा है, हे बेलतशस्सर। By this time, Daniel grew very powerful in that kingdom. और इस समय में दानियल उस साम्राज्य में बहुत सामर्थ्यशाली बन गया था। According to Nebuchadnezzar, in verse 9, he became the master of the magicians. और 9वें वचन में जैसा लिखा है, वो नबूकदनेस्सर के हिसाब से दानियल सारे जो चमत्कार करने वाले लोग हैं उनका धनी स्वामी बन चुका था। And Nebuchadnezzar knew one thing very well. He says, "I know that the spirit of the holy God is in thee." और नबूकदनेस्सर ने एक बात को कहा कि मुझे ये पता है कि जो पवित्र परमेश्वर है उसकी आत्मा तुझ में वास करती है। Look at the confidence and the faith Nebuchadnezzar had in Daniel. और दानियल के अंदर में दानियल में जो नबूकदनेस्सर का भरोसा और कॉन्फिडेंस है हम देखते हैं। I know that spirit of God is in you. और राजा ये कहता है कि मुझे ये पता है कि परमेश्वर का आत्मा तुझ में है। That is wonderful thing, isn't it? ये बहुत अद्भुत चीज है, नहीं क्या? He knew all about Daniel. उसको दानियल के बारे में सारी चीजें पता थी। Do our neighbors know all about us? हेलो, Do our neighbors know all about us? हेलो, हमारे जो आजू बाजू के नेबर्स है, पड़ोसी हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं क्या? Do they know that we belong to a living God? क्या वो जानते हैं कि हम सच्चे और जीवित परमेश्वर के लोग हैं? Here the king knew it very well that Daniel belonged to the living God. यहाँ पे ये जो राजा है वो ये बहुत अच्छे से जानता था कि दानियल जीवित परमेश्वर का आदमी है। And moreover, he says, "No secret troubles you." नहीं, केवल नहीं, तो वो आगे चल के ऐसा कहता है कि कोई भी गुप्त बात ऐसी नहीं है जो तुझे सताएगी या कोई तेरे से छुप पाएगी। It means Daniel was a trouble-free man. इसका मतलब है दानियल सभी प्रकार से संकटों से मुक्त ऐसा व्यक्ति था। Daniel knew whatever happens, that happens with the will of God. दानियल को ये पता था कि जो कोई चीज होती है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है। And God always wanted to teach a lesson or wanted to say something to all of us. और हमेशा परमेश्वर हमें इसलिए ये सारी चीजें सिखाता है क्योंकि उसको कुछ तो हमसे बात करना होता है। So therefore, King Nebuchadnezzar says, "Nothing will trouble you." और इसलिए नबूकदनेस्सर ऐसा कहता है कि कोई भी चीज तुझे तकलीफ। Okay, he has narrated the dream.
और फिर उसने आगे चल के अपने सपने को बताया। Now, the narration of dream is mentioned, verse 10 and until 18th verse. जो सपना उसने बताया हो 10वें वचन से लेके 8वां वचन And he तक, saw a dream. और उसने एक In that सपना he saw देखा a tree which grew very high. और वहां पे उसने एक वृक्ष को देखा, वो आसमान में बहुत ऊंचा तक And बढ़ gave चला, shelter to all kinds of people. और वहां पे अलग बहुत सारे प्रकार के लोग आके, But what troubled him more was, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज है जो उसको तकलीफ दी वो ये है, verse 13. 13 वचन हम पढ़ते हैं। I saw in the visions of my head upon my bed, and behold, a watcher and an holy one came down from heaven. ब्रदर, मैं पढ़ता हूँ ब्रदर। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। हेलो, Yeah, that has troubled him more. और ये चीज ने उसे बहुत तकलीफ दी। A watcher and an holy one came down from heaven. और ये एक जो निरीक्षण करने वाला था वो स्वर्ग से नीचे आया। In verse 14, he cried aloud, cut the tree down. और उसने 14 वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने झाड़ को काट दिया। Let all the people scatter. ताकि सारे जो लोग हैं तितर बितर हो जाए। And in verse 15, nevertheless, leave the stump of his roots in the heaven. तब उसके ब्रदर वचन को पढ़िए तो जरा। तो भी उसके टूट को जड़ समेत भूमि से छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। ओके ब्रदर। Okay. Then another important word which troubled him was in verse 16, let his heart be changed from man's and let beast's heart be given unto him. और वहां पे 13 वचन में हम पढ़ते हैं कि उसका मनुष्य का हृदय निकाल के एक पशु का हृदय उसे दिया जाए। Now in verse 12 and 13 and 14 we read addressing the tree as it, it. हाँ, 13 और 14 वचन में हम देखते हैं कि उस जो वृक्ष है उसको इट मतलब एक जान नहीं ऐसी चीज बताया गया है। Generally we call about the tree, it looks very good. हाँ, हम झाड़ के बारे में ऐसा बोलते हैं, हाँ ये झाड़ अच्छा दिख रहा है। It is very green. ये बहुत हरा भरा है। But we will not say he is very green. लेकिन हम झाड़ के बारे में एक लड़के को जैसा वो लड़का बोलते हैं वैसा वो झाड़ नहीं बोलेंगे। What surprised Nebuchadnezzar was the change of gender from it to personification in 15 and 16 verses. जो एक अचंभित करने वाली चीज जो नबूकदनेस्सर को लगी वो ये थी कि जो झाड़ जिसको निर्जीव है करके पुकारा गया था उसी झाड़ को आगे के 16वें वचन में एक जिंदा है करके पुकारा गया है। In verse 14 we read that scatter his fruit, let the beasts get away from under it, that is tree, from under it. हाँ, और 14 वचन में हम देखते हैं कि सब
तितर बितर हो जाए और उसके वो जो निर्जीव वृक्ष है उसके नीचे। So in 15 and 16 verses, we have the addressing like a person, he. लेकिन 15 और 16 वचन में आने के बाद उसी झाड़ को एक जिंदा जिंदा आदमी के समान पुकारा गया है। In verse 16, he says, let his heart be changed from man's unto a beast's heart. और 15 और 16 वचन में हम देखते हैं कि एक मनुष्य के हृदय का जो हृदय है वो निकाल के एक पशु का हृदय उसे दिया जाए। Let 7 times pass over him. और 7 समय उससे गुजर जाए। And then in verse 17 it says, when he come to know that there is a living God and his a man of heart of man shall be given to him. और वापस 17 वचन में हम जब आते हैं तो उसको ये पता चलता है कि परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है और उसे मनुष्य का हृदय दिया जाता है। Okay, after watching that dream, he was naturally troubled. और इस वृक्ष को देखने के बाद बहुत तकलीफ उस राजा को हुई। He must have woke up with a troubled heart. और बहुत तकलीफ पूर्ण हृदय से वो बिस्तर से जागा होगा। As long as he saw tree grew up, come to heaven, and many people came under its shelter, it was good for him. जब तक उसने ये देखा कि वो वृक्ष बहुत बड़ा हुआ और बहुत सारे लोग आके उसकी छाया में आश्रय में आ गए, तब तक तो उसको अच्छा लगा होगा। And when it was announced it should be cut down, लेकिन जब ये घोषणा की गई कि उस वृक्ष को काट दिया जाए, but the root be left out, और उसके जो रूट है मूल को निकाल दिया जाए, and he shall have a beast's heart, और उसको एक पशु का हृदय दिया जाए, and he was troubled. और वो बहुत तकलीफ में आया। And then after hearing what about Daniel's attitude, और ये सब सुनने के बाद दानियल ने क्या कहा? verse 19, 19 वचन में हम पढ़ते हैं। Daniel ब्रदर was पढ़िए। astonished for an hour. तब दानियल हाँ, हेलो। एक एक घंटे के लिए दानियल अचंभित हुआ। When he understood the dream, he was troubled in his spirit. जब दानियल को ये सपने के बारे में पता चला तो अपने हृदय में वो उससे बहुत तकलीफ हुआ। What to tell, how to tell to the king. राजा को क्या बताया जाए और कैसे बताया जाए। But he was a strong counselor. और वो एक बहुत अच्छा सलाह मसलत देने वाला व्यक्ति था। A man of God will not fear no man. जो परमेश्वर का आदमी है किसी भी आदमी से नहीं डरता। And he will have to tell God's word to each and everyone. और परमेश्वर के आदमी को हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन बताना है। I heard an incident occurred in my hometown. मैं जहाँ से हूँ उस शहर में मैंने एक घटना को सुना है। The evangelist of our hometown assembly used to go to post office every morning, and while going he will carry the tracts with him. और वहाँ के हमारे असेंबली के एक जो सुसमाचार प्रचारक है हर दिन सुबह सुसमाचार की पत्रिका लेके पोस्ट ऑफिस में जाते थे। So one day he was carrying the tracts. The title of the tract was "The Rich, the Foolish Rich Man." और एक दिन सुबह जब वो पत्रिका लेके जा रहे थे उस टैग के ऊपर लिखा था कि एक बेवकूफ श्रीमंत आदमी धनवान। So whenever he walks, whosoever comes, he would hand over the tract.
और जो कोई उस जगह से जाता था उनको वो पत्रिकाएं दे देते थे। When he started his walk, he came across a rich man of that area. और जब उन्होंने चलना शुरू किया तो वहां पे एक धनवान व्यक्ति था, वहां And, से वो जाने लगे। who was very much known to this evangelist. और वो धनवान व्यक्ति इस व्यक्ति को अच्छे से जानते थे He had a very good relationship with him and friendly relationship. और उस धनवान व्यक्ति का इस व्यक्ति के साथ और प्रभु के व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा संबंध था। Then he began to think he is a rich man, और उसने ऐसा सोचा कि ये एक धनवान व्यक्ति है known to me very well, और ये मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं respects me very well. और मुझे बहुत सम्मान भी देते हैं। Now, should I hand over the tract to him which says the foolish rich man? क्या मैं ये जो मेरे हाथ में हस्तपत्रिका है जिसपे ऐसा लिखा है कि एक धनवान मूर्ख व्यक्ति, ये पत्रिका इस व्यक्ति को मैं देना चाहिए? Barnabas, हेलो, somebody's mic is on. No, uncle, no. Vinod brother వెనక నుంచి వస్తున్నాయి అంకుల్. Oh, ओके ओके, there's a lot of noise. हाँ हो गया अंकल। Now, how to hand over the tract to that man? अभी ये जो हस्तपत्रिका है उस आदमी को कैसे दी जाए? And he immediately strengthened, Lord, I have to do my job. और उसने अपने आप को धीरज बताते हुए परमेश्वर से कहा कि हाँ प्रभु मुझे ये काम करना है। So he handed over the tract to him. और उसने वो जो हस्तपत्रिका है उस व्यक्ति को दे दी। And he received it and he went on and he went ahead a couple of steps. और उन्होंने वो व्यक्ति को हस्तपत्रिका दे दी और वो व्यक्ति ने ले ली और इस रीति से वो आगे चले गए। That the rich man, after taking that tract and read it, and he called him. वो जो धनवान व्यक्ति थे उसने उस हस्तपत्रिका को लिया, पढ़ा, पढ़ने के बाद तुरंत उस इवेंजलिस्ट को बुलाया। Then evangelist thought, now what he is going to tell to me? अभी वो जो सुसमाचार प्रचारक सोचने लगे कि ये धनवान व्यक्ति मुझसे क्या कहेंगे। And he asked, do you mean all the rich people are fools? तो उन्होंने ऐसा कहा कि क्या आप ये सोचते हैं कि सभी धनवान व्यक्ति मूर्ख है? And the evangelist told him, no sir, there is a rich man of whom the tract is written. He was a foolish man. नहीं, वो सुसमाचार प्रचारक ने ऐसा किया नहीं जनाब, ये जो ट्रैक जिस धनवान व्यक्ति के बारे में लिखा था वो धनवान व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है। So we the children of God need to tell the truth. और जो हम परमेश्वर के बच्चे हैं हमें हमेशा सच्चाई बताना है। Though the dream talks about Nebuchadnezzar's pride and God is going to deal with him. और जो सपना नबूकदनेस्सर ने देखा था वो नबूकदनेस्सर का जो घमंड था उसके बारे में बताता था और परमेश्वर उसके साथ क्या करने वाला है वो भी परमेश्वर ने उसे बताया था। And Daniel narrated the dream very well. और दानियल ने उस सपने का जो भेद है बहुत अच्छे से बताया। And after narration of the dream, और मतलब बताने के बाद, भेद खोलने के बाद, he gave a counsel to him. और उसने उसके साथ अच्छे से बातचीत की। Verse 27. 27 वचन में हम पढ़ते हैं, Wherefore, O king, let my counsel be acceptable unto thee. और इसलिए हे राजा, मैं जो बातें तुझसे कहता हूँ तुझे वो सभी मान्य हो। And break off thy sins by righteousness and thine iniquities by showing mercy to the poor. और जो तेरा अन्याय है वो अच्छी बातों से और जो तेरी कठोरता है वो दया से परिवर्तित हो जाए। Daniel did not keep quiet after interpreting the dream. सपने का भेद बताने के बाद दानियल चुपचाप नहीं रहा। He grew very mature. और उसने एक अच्छा बात राजा को बताया। And he became a master of the magicians.
और वहां पे वो जो सारे चमत्कार करने वाले लोग हैं, उनका एक मास्टर धनी बन गया था। He was bold enough to counsel the world emperor of that time. और वो इतना धैर्यशाली या धीरजवंत हो चुका था कि उस समय का जो साम्राज्यशाली राजा है, महाधिराज, उसको भी वो कुछ समझदारी की बातें बता सके। Let my counsel be acceptable unto thee, O king. और राजा, मैं जो समझदारी की चीजें तुझे बता रहा हूँ, वो That तेरे is- नजरों में मान्य हो जाए। That is okay. और ये ठीक है, But the next line says, break off thy sins. और आगे वाली चीजों में हम देखते हैं कि अपने चीजों से तू फिर जा, ऐसा वो कहता है। Break off thy sins. अपने पापों से पछतावा कर लो। In other words, Daniel says to Daniel says to Nebuchadnezzar, you are committing sins. दूसरे शब्द में कहा जाए तो हम ऐसा कहेंगे कि दानियल नबूकदनेस्सर को कह रहा है कि तू पाप कर रहा है। What have we studied in chapter 3? और हमने तीसरा है In chapter 3, I'm sorry, has he not erected a huge image? और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि उसने एक बहुत बड़ी मूर्त को बनाया। And in that chapter, we have studied that the image was in conformity of himself. और वो जो बहुत बड़ी मूर्त थी, वो खुद राजा के बारे में बता रही थी। And he erected himself as a god. और उसने अपने आप को परमेश्वर करके खुद को ऊंचा किया। He lifted himself up और राजा ने अपने आप को ऊंचा किया because pride entered into his heart. क्योंकि घमंड उसके हृदय में घुस गया। Therefore, Daniel counsels him to break down his sins. और इसलिए दानियल समझदारी से राजा से कहता है कि अपने पापों को छोड़ दे। And he says to show mercy and kindness to the poor. और इसलिए वो कहता है कि जो गरीब लोग हैं उनको दया और कृपा दिखाओ। Shall we read Proverbs 16? और 16 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Proverbs 16. Proverbs 16. नीति वचन का किताब, उसका 16वां अध्याय, Verse 6. उसका 6वां वचन। ब्रदर पढ़िए 16 का 6। By mercy, अधर्म का प्रयचित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। this is the counsel he gave to him. और यही वो समझदारी की बात है जो दानियल ने राजा से कही थी। By mercy and truth, iniquity is purged. और कृपा और दया से जो अन्याय है वो दूर हो जाता है। And by the fear of the Lord, men depart from evil. और परमेश्वर के भय से मनुष्य दुष्ट कर्मों से दूर हो जाता है। This is the counsel he gave to the king. और यही वो समझदारी की बात है जो दानियल ने राजा से कही थी। Daniel did his job. दानियल ने अपने काम को बहुखूबी निभाया। He has not only interpreted the dream दानियल ने केवल सपने का भेद बताया, इतना ही केवल नहीं, and counseled the king also. और दानियल ने कुछ समझदारी की चीजें भी राजा को बताई। And he went off. और फिर दानियल चला गया। What has happened then? और उसके बाद में क्या हुआ? Verse 12, verse 29. At the end of 12 months, और 12वां अध्याय के 29 वचन में हम पढ़ते हैं कि 12 महीने के अंतिम में God gave him full 1 year of time for repentance. परमेश्वर ने 1 साल का उसे वक्त दिया ताकि वो अपने पापों से पश्चाताप करे। What happened after 12 months? और 12 महीने के बाद क्या हुआ? In verse 30,
और 13 वचन में हम 30 वचन में हम Nebuchadnezzar looked at the glory of Babylon. और नबूकदनेस्सर ने अपने बाबिलोन शहर का महिमा देखा And then began to think, is it not my Babylon which I have built for my own glory? और उसने ऐसा कहा कि ये वही बाबिलोन नहीं है क्या जो मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है। He exalted himself again. और उसने अपने आप को ऊंचा उठाया। I have built this Babylon for my glory. मैंने इस बाबिलोन को मेरी महिमा के लिए बनाया है। He has forgotten God who has brought him to this position. और वो ये भूल गया कि परमेश्वर ने उसे इस मुकाम पे लाके खड़ा किया था। And he did not give glory to God. और उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। He has forgotten the counsel of God. और परमेश्वर ने दी हुई समझदारी की जो बात है उसको उसने नहीं माना। Now there is no doubt he built Babylon beautifully. और सचमुच बाबिलोन शहर को उसने बहुत अच्छे से बनाया था। One of his wives was from hill country. हेलो, One of his wives was from hill country. हाँ, उसकी जो पत्नियां थी उसमें से एक पत्नी जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं उस गांव से थी। And we know that people who live in hills, they will have beautiful landscape. और जो पहाड़ों पे रहते हैं वहां पे बहुत सुंदर से दृश्य दिखाई देते हैं। And hills and valleys and rivers, beautiful to watch upon. और बहुत सारे पंछी रहते हैं और निसर्ग का सौंदर्य भी वहां पे रहता है। In order to please that his wife, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए he built vaulted buildings. और उसी मुताबिक उसने कुछ चीजों को बनाया। Vaulted buildings like in this manner built, and he filled spaces with the earth and planted small plants. Which grew up in the building itself, they began to hang on. और वो बिल्डिंग के मुताबिक बढ़े। And Hello? they are called hanging gardens. और वो जो गार्डन है उसको हैंगिंग गार्डन करके कहा गया। And they were built by Nebuchadnezzar. और ये नबूकदनेस्सर के द्वारा बांधा गया है। When he looked at Babylon, looked beautiful and glorious. और जब वहां पे बाबिलोन को देखा जाता था तो बहुत सुंदर और महिमामय ऐसा दिखता था। Therefore he said, is it not Babylon which I have built for my glory? और इसलिए वो ऐसा कहता है कि ये वो वही बाबिलोन नहीं क्या कि जो मैंने अपने महिमा के लिए बनाया है। What do we read in verse 31? और 31 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? While the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven. और जब राजा के मुख में शब्द ही था तभी पर एक आकाश से वाणी हुई And said, the kingdom is departed from you. और पर उस वाणी ने कहा कि तेरा राज्य तुझसे छीन लिया गया है। People shall drive you into the forest. और तुझे जंगल में घिसेड़ा जाएगा। You will eat grass like an ox. और जो गधे हैं उनके मुताबिक तू घास खाएगा। Until you realize that there is a living God in heaven. जब तक तुझे ये पता ना चले कि स्वर्ग में एक जिंदा परमेश्वर है। And in the 33 verse, the same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar. और 33 वचन में हम देखते हैं उसी समय में ये सारी बातें नबूकदनेस्सर के ऊपर हो गई। My dear friends, let us understand one important thing here. और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं मेरे भाइयों, हमें समझना है। When God wants us, जब परमेश्वर की इच्छा है, warning, हाँ, जब परमेश्वर हमें चेतावनी देता है through His word, तो उसके वचनों के द्वारा we need to rectify our lives.
तो हमारे जीवन में जो सारी चीजें हैं उसको हमें बदलना है He will give grace, no doubt about it. और परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। God waited for 1 year in case of Nebuchadnezzar. नबूखदनेस्सर के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर 1 साल तक वहां पे 5 जोता रहा And he waited whether he will repent or not. और उसने ये देखा कि ये नबूखदनेस्सर अपने पापों से पश्चाताप करेगा या नहीं। And let's examine ourselves. God is waiting for you and I to repent on various sins, hidden sins that we have. और हम भी अपने आप की चौकसी करें कि क्या हम भी अपने पापों से पश्चाताप करें, इसलिए परमेश्वर हमारे लिए भी राह नहीं देख रहा क्या? He is extending his grace to us. और परमेश्वर उसका अनुग्रह को दिन ब दिन बढ़ाते जा रहा है हमारे लिए। We should not dare to play with the grace of God. और इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह से खेलना छोड़ दे। What do we read in book of Ecclesiastes? और जो उपदेशक की किताब है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? Chapter 8, 8वां अध्याय verse 11. और उसका 11 वचन, ब्रदर पढ़िए जरा 8 का 11। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। This is what is happening today. और यही आज हो रहा है। Because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. हाँ, तो मनुष्य का मन पूरे बुराई से भरा हुआ है। And immediately Nebuchadnezzar was driven into the forest. और तुरंत नबूखदनेस्सर को जंगल में घसीटा गया। The human heart was removed from him. और जो मनुष्य का हृदय है उससे निकाल दिया गया। And heart of an animal was given to him. और एक पशु का हृदय उसे दिया गया। Babylonian historians say that Nebuchadnezzar suffered from a disease which is called boanthropy. और बाबेलियन के जो इतिहासकार हैं उन लोग ऐसे कहते हैं कि नबूखदनेस्सर को एक बीमारी हुई, उसको बालनथ्रोपी बोलते हैं। And with this disease, man would feel like as he was an animal, he was an ox. और उस जो बीमारी है उसमें मनुष्य को ऐसा लगता है कि मैं एक प्राणी हूँ, एक गधा हूँ। And he was sent to the forest. और उस राजा को जंगल में डाला गया। And he suffered the heat of the day. और वो जो वहाँ का उष्णता था, उसका गर्मी था, वो उसने सहन किया। And the chillness of the night. और रात में जो ठंडी गिरती है वो भी उसने देखी। Until he realizes there is a God in heaven. और जब तक उसने ये समझा नहीं कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है। Verse 34. 34 वचन में हम पढ़ते हैं। And at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven. वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मैं जो नबूखदनेस्सर है, मैंने अपने आँखें स्वर्ग के ऊपर लगाई। And began to praise God. और मैंने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू किया। My dear friends, this is a repentance. Jonah did the same thing. और योना ने भी यही बात की। He wanted when he entered into the fish's belly. और जब वो एक मच्छी के पेट में चला गया। And from there he began to cry to God. और फिर वहां से उसने परमेश्वर को स्तुति करना शुरू किया। And after that he was again restored to his kingdom. और वापिस हम राजा के बारे में पढ़ते हैं कि अपने साम्राज्य के ऊपर वो महाराजा अधिराज बना। Now finally, verse 37 आगे चल says, के 37 वचन में हम पढ़ते हैं। Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven,
all whose works are truth, and his ways judgment, and those that walk in pride is able to अच्छा भाई, abase. अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। He realized that there is a God in heaven, उसने अपने दिनों में ये याद किया कि परमेश्वर स्वर्ग में है, and he realized that he breaks the pride of man. और उसने ये भी समझ लिया कि परमेश्वर मनुष्य के घमंड को तोड़ता है। What was the cause for his pride? उसके घमंड का क्या कारण He था? has forgotten that God made him all the kingdoms of that time. और ये वो भूल गया था कि परमेश्वर ने जो सारे साम्राज्य है उसके ऊपर उसे राजा बनाया है, He made himself a God. और उसने खुद को अपने आप को परमेश्वर मान लिया था, बनाया था, He did not give glory to God, और उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, and therefore God taught him a और lesson. इसलिए परमेश्वर ने उसको एक अच्छा से चीज सिखाया। Now he says he breaks the pride of man. और अभी यही राजा ये कहता है कि वो मनुष्य के घमंड को तोड़ता है। My dear friends, let us learn a lesson here. और मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ से एक अच्छा सा लेसन मुझको जो कुछ भी सीखने मिलता है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। Let's not exalt ourselves because of any good thing that we have. हमारे अंदर में भी कोई भी अच्छी चीज होगी, उसके लिए हम अपने आप को ऊंचा ना उठाए। Let's remain faithful and grateful to God. परमेश्वर के लिए हमेशा विश्वास योग्य और हमेशा उसकी प्रशंसा करने वाले ऐसे हम बने रहे, And serve him faithfully. और विश्वास से हम उसकी सेवा करें। May God bless these thoughts. ये सारे विचार परमेश्वर आशीषित करे। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।